A very good evening once again to our users. Today, with the last session, we will be meeting one of the renowned audiologist and speech language pathologist. Let me introduce her. She is a known audiologist and speech language pathologist, known across pan India. She has been dedicatedly working, given her life, in treating communication challenges individuals with hearing problem and different speech language issues. May I take a privilege to introduce Miss Meenakshi Vadera ma'am. Thank you ma'am for coming to this today's session. आज बेसिकली आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, सो हम चाहते हैं कि मैम आप अपना एक इनपुट दीजिए हमारे व्यूअर्स को एक लिसनिंग एनवायरनमेंट में, ताकि उन्हें आज बहुत कुछ पता चल सके कि क्या एक हियरिंग इश्यूज होते हैं. तो बेसिकली मैम आज हमारे साथ मैनेजमेंट ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम पे बात करना चाहते हैं. तो साइमल्टेनियसली इस पे असिस्टिव लिसनिंग डिवाइस की क्या इंपॉर्टेंस होती है. टिनाइटिस एक प्रॉब्लम होता है जो मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल को परसीव होता है, एक तरह से कान में आवाज आने का सेंसेशन बोलते हैं हम. उसके साथ साथ हमारे इसमें कुछ मिक्स और हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैम से सीखेंगे कि क्या हमें करना चाहिए. ओवर टू यू मैम. Thank you, Asif. Thank you very much for giving me this chance, and thanks to the Widex team. जैसे हम सब जानते हैं कि hearing loss बहुत prevalent issue है इंडिया में. In India itself, there are like 63 million people who suffer from some kind of significant hearing loss, which require some kind of help. And there are only 5% of this population which are children. Most of them are actually adults. And actually around 75% of this population is above the age of 50. So that means that as we age, the chances of having a hearing loss increases. And in spite of having huge population which needs help, we have been able to treat only 0.1% of the population who actually needs hearing aid. That means that from the whole complete population which requires and needs hearing aid, only 0.1% of them are using hearing aid. But before we go why and what happens if we don't treat a hearing loss, we need to understand that hearing loss or listening is not about ear. Ear only collects the sound from the environment and guides that sound to our brain. So it collects the information and guides to the brain. It is the brain which actually does the listening. And when we have the hearing loss, it keeps the information reaching the brain. So if जब हमें आवाज नहीं पहुंचती है ब्रेन तक, तो ब्रेन अपना फंक्शन धीरे धीरे कम करने लगता है. सो हियरिंग लॉस का उस पर डायरेक्टली इफेक्ट होने लगता है. इसी कारण से द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग हियरिंग लॉस इज ह्यूज. द अनट्रीटेड हियरिंग लॉस हैज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ not just our listening, it also impacts our physical, emotional, psychosocial aspects of our day-to-day. It cuts person from person. It causes withdrawal, causes tensions, anxiety. It has innumerous negative impacts on our life. It reduces our quality of life. Despite such detrimental effects, the effect of hearing loss, why? We need to understand why people are not using hearing aids when actually they really need it. There are numerous factors. They could be either unaware of the hearing loss and that they don't even know that they have a hearing loss. And the only way to find a hearing loss is to get a regular hearing checkup done. Basically, like we do our health checks on a regular basis, we need to get after 50 years of age, we need to get our hearing test done on an annual basis. So that we can catch hearing loss at the earliest and reduce the negative impacts of hearing loss. Or then it could also be that they're in denial. They know they have a hearing loss. We come across people who come to us and say, I don't have a problem. It's actually people around me who mumble. ये लोग धीरे बोलते हैं, मुझे तो सही सुनता है. It actually indicates denial, or it could be vanity, that लोग क्या कहेंगे. अगर मैं हेयरिंग लॉस अगर हेयरिंग एड यूज करता हूं तो लोग मुझे बहरा कहने लगेंगे. ये सब एक मिथ्स है. हमें ये जानना है कि हेयरिंग लॉस जो है वो हेयरिंग एड से ज्यादा विजिबल है.
जब आप दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं तो सबको पता लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो ज्यादा विजिबल है। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर हम हेयरिंग एड लगा के सब बात समझ पाए ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड we need to come out of the stigma which is being attached to the hearing impairment. So what are the treatment when we call say hearing loss? Hearing loss एक huge term है, huge umbrella है. So when we talk about hearing loss, it could be conductive, मतलब कि आपके बाहर के कान में प्रॉब्लम हो सकती है, कान के बीच वाले हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट से या सर्जिकल ट्रीटमेंट से रेक्टिफाई की जा सकती है। लेकिन अगर प्रॉब्लम कान के अंदर के हिस्से में जिसको हम कॉक्लिया कहते हैं, दैट इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस विच इज काइंड ऑफ परमानेंट। उसका मेडिसिन से या सर्जरी से ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता। द ऑप्शंस अवेलेबल आर ईदर यूज अ हेयरिंग एड और व्हेन हेयरिंग एड्स आर नॉट हेल्पफुल देन वी गो फॉर इम्प्लांट्स। So implants or hearing aids are beneficial both to children as well as adults. So I'll talk about some of these aspects. So if we are looking at hearing aid in people who have sensory neural hearing loss, as I said, permanent hearing loss, so there are big decisions which needs to be taken, like using one hearing aid or two, what kind of style, size of hearing aids that are required for a particular kind of hearing loss. Is really technology important? What kind of level is required for a person? So all this we will be discussing today. So we hear this myth generally कि लॉस है, दोनों कान में लॉस है, लेकिन एक कान में हेयरिंग एड लगाने से काम चलता है, जो कि बहुत गलत है। We require both here. Why do we require both here? Because they help us in giving a natural sound. When we hear with both ear, तभी हमें एक नेचुरल साउंड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आवाज किस तरफ से आ रही है वो हम तभी जान सकते हैं अगर हमारे दोनों कान जो है वो एक लेवल पे काम कर रहे हैं। और इट हेल्प्स अस इन लिसनिंग इन नॉइज। डिस्टेंस पे कोई बात कर रहा है, अगर आप सिर्फ एक मशीन लगा रहे हैं तो आप क्लियरली नहीं सुन सकते हैं। सो इन सब चीजों को देखते हुए आई विल से दैट बोथ ईयर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिसनिंग। सो अगर हम सिर्फ एक कान में हेयरिंग एड लगाते हैं तो हम कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी जो है कहीं ना कहीं पे इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेन को, जिससे ब्रेन फिर भी जो है डिप्रीवेशन, जिस कारण में हम नहीं यूज कर रहे उसमें डिप्रीवेशन फिर भी सेट इन होने लगता है। सो देन कम्स ओके हेयरिंग एड्स। अब एक पेशेंट ने मान लिया मुझे हेयरिंग एड की रिक्वायरमेंट है, हाँ मैं दो। देन कम्स अ डिसीजन कैसी हेयरिंग एड लगानी। बहुत तरह की हेयरिंग एड्स होती हैं। So when we look at hearing aids, if you see here, then we look at like hearing aid could be as small as this much. Usually when people think कि दिखेगी, of course there are different styles and different sizes. You just put it in the ear and it's not visible. Or it could be these hearing aids which are like which is called RIC hearing aids. These are very good hearing aids these days, and it gives us excellent features and technologies. And if I show you that if we wear this, and see, it actually is not visible at all. And then we have a BT, of course, like these bigger hearing aids. But we need to know that not every hearing aid is suitable for every person. कौन सी hearing aid सूट करेगी will depend on कि पेशेंट को कितना लॉस है, पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या है, उसको क्या फीचर्स नीडेड है, उसकी कॉस्मेटिक नीड्स क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या वो छोटी हेयरिंग एड को हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें छोटी चीजें हैंडल करने में दिक्कत आती है, जिसको हम डेक्सटैरिटी प्रॉब्लम कहते हैं। तो अगर हम उसको हैंडल करने में दिक्कत है तो पेशेंट जैसे हेयरिंग एड निकालेगा तो गिरने का चांस रहता है। तो ये सब चीजों पर डिपेंडेंट है कि हम कौन से स्टाइल की हेयरिंग एड पेशेंट को देंगे। जैसे कि अगर पेशेंट का लॉस सिवियर है तो CIC जो है वो उतनी सुटेबल नहीं रहती है, वो उतना गेन दे ही नहीं सकती है पेशेंट को जितना उसको रिक्वायर्ड है। सो देन वी लुक एट टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी डिसाइड व्हाट स्टाइल। ऑफ कोर्स अब कई लोग सोचते हैं कि जो CIC है वो ज्यादा एडवांस्ड है RIC से, वो अलग सेगमेंट है। आप हर तरह की टेक्नोलॉजी हर स्टाइल में पा सकते हैं। सो एक advanced hearing aid you can find in a CIC and the same technology we can have in a RIC also.
सो ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हुई है एंड आप इस तरह से सोच सकते हो कि जो हियरिंग एड है वो अपने आप में एक छोटे कंप्यूटर्स हैं. इट कैन प्रोवाइड अ ह्यूज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फीचर्स विच आर रिक्वायर्ड. सो देन देयर इज अ मिथ दैट आप चाहे बेसिक हियरिंग एड लगाओ या एडवांस लगाओ वो सब एक जैसी होती हैं. ऐसा नहीं है. अब इसको समझाने के लिए आप ये सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और हर तरफ से देयर इज लॉट ऑफ नॉइसेस हैपनिंग ऑल अराउंड यू. नेचुरली रेस्टोरेंट में वी आर लुकिंग एट पीपल टॉकिंग, बर्तनों की खटखड़ाहट है, लोग आ जा रहे हैं. देन ऑफ कोर्स अ हियरिंग एड यूजर वांट्स टू टॉक टू अ फ्रेंड हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम. अब ऐसे सिचुएशन में अगर वो एक सिंपल बेसिक लेवल की हियरिंग एड लगाता है तो उस हियरिंग एड में वो फीचर्स ही नहीं है कि वो इस सिचुएशन को केटर कर सके और उसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सके. इसका मतलब ये है हाउ वेल अ हियरिंग एड कैन रिड्यूस दिस नॉइसेस, द बैकग्राउंड एंड एनहांस द स्पीच will depend on the technology, the features available in these hearing aids. So when we talk about features, so मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नॉइस रिड्यूस करना, है ना. तो अलग अलग लेवल पे के फीचर्स होते हैं हर हियरिंग एड में. जैसे कि नंबर ऑफ चैनल्स, ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स जो है इज बेटर. क्यों बेटर है? क्योंकि वो एक बेटर एडजस्टमेंट दे पाते हैं आपके हियरिंग लॉस के हिसाब से. सो इफ अ पर्सन, हर एक का लॉस अलग है ना, तो उसके हिसाब से हमें एडजस्ट करना है. तो जितने ज्यादा चैनल्स हैं उतने बेटर उस पर एडजस्ट कर सकते हैं. जैसे कि आप फोटोग्राफ देखते हैं, देयर आर फोटोग्राफ्स which we click with the smaller cameras and of the high pixel cameras also. So what happens is that जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी क्लियर होती है पिक्चर. दैट इज ऑल. बट सिर्फ चैनल ही सब कुछ नहीं है. हम ये भी समझना है कि देयर आर अदर फीचर्स लाइक नॉइस रिडक्शन फीचर्स, जैसे कि इम्पल्स नॉइज है, डिजिटल नॉइज रिडक्शन है, डायरेक्शनल माइक्रोफोन्स हैं. देन देयर इज लाइक बाइनॉरल प्रोसेसिंग. आज की डेट में ऐसे फीचर्स हैं कि एक हियरिंग एड दूसरे हियरिंग एड के साथ कम्युनिकेट करती है और दे वर्क लाइक वन सिस्टम एंड thus reducing the background noise and giving a better understanding. Then today the hearing aids are coming up with artificial intelligence. एंड सो क्या होता है कि जो हियरिंग एड्स हैं वो रियल टाइम में आपके एनवायरनमेंट को, साउंड एनवायरनमेंट को असेस करता रहता है और जैसे ही और उसको एनालाइज करता रहता है और बिकॉज ऑफ द मशीन लर्निंग इन इट कैन स्टोर दैट एनवायरनमेंट एंड व्हेन, और जब हम उस एनवायरनमेंट में दोबारा जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो हियरिंग एड है वो सेम एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करके सेम फीचर्स को अप्लाई कर देता है. सो इट इज एज सिंपल एंड एज कंफर्टेबल. सम पीपल थिंक कि जितनी हायर फीचर होंगे उतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है हियरिंग एड, विच इज अ मिथ. फीचर्स आपकी हियरिंग एड यूसेज को इजी कर देती है, कंफर्टेबल कर देती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब दूसरा, और फिर अब इसी जगह पे देखेंगे, अब जो जिससे हम बात कर रहे थे उसी एनवायरनमेंट में एक एग्जांपल लेते हैं. अगर वो इंसान थोड़ा दूर बैठा है तो आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लीजिए, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितने भी अच्छे फीचर यूज कर लीजिए, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा उस इंसान से. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है और शोर उस आवाज को दबा देता है. हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि उस आवाज को सीधा पेशेंट के कान तक पहुंचा सके, उसकी हियरिंग एड तक पहुंचा सके. उसके लिए हमें असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस चाहिए, जैसे कि एफएम सिस्टम्स हैं हमारे, है ना, रिमोट माइक्रोफोन्स हैं. आज की डेट में ऐसे फीचर्स हैं कि हमारा जो मोबाइल फोन है इवन दैट वर्क्स लाइक अ रिमोट माइक्रोफोन. सो आपको एडिशनल कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक फोन लेके हैं तो जो बात कर रहा है वो फोन पे ऐसे बात कर रहा है और ये आवाज सीधी जो है वो हियरिंग एड यूजर तक पहुंच जाती है ताकि, और जो सारी बैकग्राउंड नॉइज है वो कट जाती है. तो क्लैरिटी आती है, कम्युनिकेशन हो सकती है. देन वी टॉक अबाउट, देन देयर आर people come into and say that उनको टीवी सुनने में दिक्कत होती है या फोन सुनने में दिक्कत होती है. तो आज की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप फोन और टीवी के साथ एक डिवाइस लगा देते हैं जिससे सीधा जो है पेशेंट के कान तक आवाज आती है. अगर आसपास लोग बात भी कर रहे हैं तो उससे पेशेंट को डिस्टर्बेंस नहीं होती है, वो टीवी को अच्छे से समझ पाता है. देन वी हैव ब्लूटूथ कंपैटिबिलिटीज, which is a wireless feature, such a wonderful feature that
हमें कोई तार नहीं लगानी है। ये फीचर क्या करता है, हियरिंग एड को आपके मोबाइल फोन के साथ, आपके किसी भी डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट कर सकता है ना। ऑफ कोर्स यूजर, पहले क्या था कि हमें हियरिंग एड को एडजस्ट करने के लिए उसको या तो उतारना पड़ता था या अंदाजा से एडजस्ट। आज की डेट में वी हैव एप्स जिससे आप हियरिंग एड्स को एडजस्ट कर सकते हो। देन दिस इज वेरी वंडरफुल। अभी पीछे किसी एक पेशेंट का हमारे हियरिंग एड गुम गया, सो बट वी हैव फीचर्स टुडे इन हियरिंग एड्स लाइक फाइंड माय हियरिंग एड, लाइक फाइंड माय आईफोन्स होता है, ऐसे फीचर्स है जिसके मदद से पेशेंट जो है अपनी हियरिंग एड को कहीं से भी मतलब ढूंढने में उसको हेल्प कर सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑफ कोर्स इट इज फुल प्रूफ। देन आपने जैसे बोला टिनिटस, टिनिटस इज सच अ कॉमन इशू। Today, hearing aids have a feature which can use that feature along with the hearing loss to help the people with tinnitus. We'll talk about that in a while. Then we have, but अब फिर क्वेश्चन वही है कि कौन सी टेक्नोलॉजी सूट करती है, क्वेश्चन घूम के वही आ जाता है। तो पेशेंट का लाइफस्टाइल, कि उसकी लिसनिंग नीड क्या है, कितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट है उसका, ऑफ कोर्स एज, हियरिंग लॉस, ये सब चीजों से मिलाकर हमें एक सोल्यूशन देना पड़ता है पेशेंट को जिससे उसको ऑप्टिमल बेनिफिट मिल सके। अब एक पर्सन जो घर पे रहता है उसकी लिसनिंग नीड अलग है कंपेयर टू पर्सन हु गोज टू ऑफिस और हु हैज अ एक्टिव सोशल लाइफ, तो डेफिनेटली हियरिंग एड टेक्नोलॉजी विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। बट आप कोई भी हियरिंग एड लीजिए, अगर वो अच्छे से प्रोग्राम नहीं हुई तो इट इज ऑफ नो यूज टू एनीबडी। दैट इज व्हाई वन मस्ट गो टू एन ऑडियोलॉजिस्ट टू सेट अ हियरिंग एड, and just buying a hearing aid is not enough. An audiologist will look into your audiogram, look into listening need, and define the hearing aid as per the person's set a hearing aid as per the person's need. So as we were talking about tinnitus, tinnitus है जो कान में हम सुनते हैं कि कान में घंटी बजती रहती है, कईयों को पानी की आवाज आती है या टप टप की आवाज आती है, सीटी बजती रहती है। इट इज अ वेरी कॉमन इशू एंड it affects severely to a population. It reduces the quality of a life of a person. उनको नींद नहीं आ रही है या उनको एंजाइटी हो जाती है, but it is, although it is a serious issue, but it is not life threatening and it can be managed. We only need to do is, of course tinnitus hearing loss के साथ हो सकता है या बिना hearing loss के हो सकता है। अगर तो वो hearing loss के साथ है तो आप उसको हियरिंग एड देंगे सबसे पहले, और कई ज्यादातर केसेस में हियरिंग एड लगाते ही टिनिटस से उनको हेल्प मिलती है। दूसरी चीज है, हमें कुछ चीजें टेस्ट करनी है, जैसे टिनिटस कितना लाउड है, कौन सी पिच पे है, क्या वो मास्क हो सकता नहीं हो सकता, ये सब चीजें हमें देखना बहुत जरूरी है। देन वी कम टू, एज आई सेड, यूज ऑफ एम्प्लीफिकेशन। अब हमने हियरिंग एड लगा दिया पर फिर भी पेशेंट को टिनिटस से प्रॉब्लम है, देन वी हैव टिनिटस मास्कर्स इन हियरिंग एड। मतलब कि अलग, या तो एक शोर जैसी आवाज हो सकती है या फिर स्पेशल साउंड्स हो सकती है, जैसे एक वाइडेक्स में जेन साउंड्स होती हैं जिससे इट्स मोर लाइक अ म्यूजिकल टोन। अब म्यूजिक में क्या होता है, प्रिडिक्टेबल होता है कि इसके बाद ये आएगा, तो एक प्रिडिक्टेबिलिटी होती है, तो उसका इफेक्ट टिनिटस पे कम होता है। बट जेन टोन्स होती है वो अनप्रिडिक्टेबल नहीं होती है, इसके कारण उसका इफेक्ट और बेनिफिट ज्यादा होता है, and it is soothing sound, so it helps in relaxation as well as in tinnitus. So that is why we say that tinnitus with masker, with therapy, a complete approach needs to be done, and help is there, but only thing is the patient needs to come to the clinics and reach to the audiologist and seek help at the earliest. So counseling is very important when we talk about tinnitus. इट डज नॉट हेल्प कि आप सिर्फ एक डिवाइस लगा के आप चले जाओ और बोले पेशेंट को अब ठीक है, ऐसा नहीं है। काउंसलिंग विद ओवर द पीरियड ऑफ थेरेपी, इन क्लिनिक थेरेपी, एट होम थेरेपी इज एडवाइज्ड, एंड हियरिंग एड्स डोंट क्योर tinnitus, it only helps us to live with it, right? And many a times we have seen that hearing loss, tinnitus also are associated with vertigo, है ना, चक्कर आते हैं लोगों को, चक्कर आते हैं, बैलेंस इश्यूज होते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर हियरिंग लॉस है या टिनिटस है तो आपके जो वेस्टिबुलर के टेस्ट हैं वो जरूर कराने चाहिए, स्पेशली बच्चों में। अगर बच्चों में आपको हियरिंग लॉस है
और साथ में उनको चलने में वो लेट हो रहे हैं या बैठने में उनको डिले है, तो बहुत जरूरी है कि उनका वेस्टिबुलर असेसमेंट होना चाहिए बच्चे का, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। राइट, इवन इन एडल्ट्स लोगों को ये मालूम नहीं है कि जो चक्कर है वो कान से रिलेटेड है। मेजॉरिटी जो है वर्टाइगो प्रॉब्लम्स वो हमारे ईयर से रिलेटेड, हमारे ईयर में ऑर्गन है वेस्टिबुलर ऑर्गन, जिसकी वजह से जिसके इम्बैलेंस से चक्कर आने का डर रहता है। और उसमें बहुत सारी चीजें जिसमें हम असेस कर सकते हैं, देन असेस करके थेरेपी की जा सकती है जिससे ही चक्कर आने बंद हो सकते हैं। It's a very simple solution, very easy solution. Some of them have, of course, some complication which needs to be evaluated, but most of them have simple solutions. अब हमने हेयरिंग एड लगा दिया। हाउ डू वी नो दैट जो ये हेयरिंग एड्स हैं ये एक्चुअली बेनिफिट कर भी रही हैं या नहीं कर रही? अब बच्चे हैं वो तो नहीं बता सकते कि हमें सुन रहा है नहीं सुन रहा, या कोई बड़े हैं, कई बार देखा जाता है हेयरिंग एड लगा लिया लेकिन फिर भी वो आते रहते हैं कि दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वेरी इंपॉर्टेंट इज टू वेरीफाई। और वो कैसे करेंगे? दो तरीके हैं। एक तो सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन है, हम बात करते हैं अपना कुछ टेस्ट करते हैं जिससे हमें मालूम लग जाता है। देयर इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ वेरिफिकेशन व्हिच इज कॉल्ड सब्जेक्टिव वेरिफिकेशन, व्हिच वी यूज रियल ईयर मेजरमेंट सिस्टम टू वेरीफाई कि हम इतनी आवाज दे रहे हैं और इतनी ही आवाज पेशेंट के कान तक पहुंच रही है। ठीक है ना? तो वो सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन गुड बेनिफिट ऑफ द हेयरिंग एड्स। राइट, लेकिन फिर एक टाइम आता है जहां पे हमें पता है कि हमने सब कुछ किया है, लॉस इतना ज्यादा है, हेयरिंग एड्स हमें हेल्प नहीं कर रही है, फिर क्या करेंगे? ऐसे कंडीशंस में जहां हमें मालूम है कि जो हेयरिंग लॉस है वो 80 डेसिबल से ऊपर है या 80 to 90 डेसिबल से ऊपर है, और जहां पे हेयरिंग एड्स से हमें बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमारी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर बच्चों में हम देखें तो हम ये लगाएंगे कि हेयरिंग एड लगाने के बावजूद भी बच्चों की जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हो रही है या उनका डेवलपमेंट रुक गई है, तो हमें कॉकलियर इम्प्लांट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि कॉकलियर इम्प्लांट जो है वो उनको हेल्प करते हैं जिन्हें हेयरिंग एड से बेनिफिट नहीं होता है या कम बेनिफिट होता है। सो आई जस्ट शो यू दैट what is if you look at this, that if this is our ear, how do we hear this? बाहर से आवाज जाती है, ये आपका बाहर का हिस्सा है कान का, ये भीतर का हिस्सा, आवाज पर्दे पर टकराती है, भीतर के हिस्से में जाती है और उसके बाद कान के अंदर के हिस्से में जाती है, जिसको हम कॉकलियर कह रहे थे। अगर प्रॉब्लम हमारी यहां है, वहीं पे हमें हेयरिंग एड्स और कॉकलियर इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। ठीक है? So, what happens? If you look at this, तो आप क्या देख रहे हो कि आवाज जब जाती है तो कान में एक हेयर सेल होते हैं जिसके मूव करने से जो आवाज है वो हमारी नस तक पहुंचती है, नसों से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और हेयरिंग एड लगाने के बाद भी यही होता है। हेयरिंग एड से हम आवाज को ऊंचा करते हैं और आवाज जब ऊंचा होता है, लाउड होता है, तो वो जाकर हमारे हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करता है और आवाज ब्रेन तक पहुंच जाती है। लेकिन कुछ केसेस में डैमेज इतना ज्यादा होता है कि वहां हेयर सेल होते ही नहीं है, तो क्या होगा? आवाज तो जा रही है, आप देखिए मूवमेंट हो रही है, लेकिन जो है वो आवाज ब्रेन तक नहीं पहुंच रही है। तो ऐसे केस में इम्प्लांट्स हमें हेल्प करते हैं। इम्प्लांट्स क्यों हेल्प करते हैं? क्योंकि इम्प्लांट जो है वो जो इंफॉर्मेशन है आपके जो डैमेज जिसको हम हेयर सेल कहते हैं तो उसको बाईपास कर देते हैं और डायरेक्टली आपके नसों में आवाज को भेज देते हैं। बेसिकली इट बाईपासेस द डैमेज पोर्शन एंड डायरेक्टली स्टिमुलेट्स द ऑडिटरी नर्व एंड सेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। हेंस where hearing aids fail, cochlear implants help. Right? So there are actually, when we think about cochlear implants, एक myth है कि cochlear implant ऐसी चीज है जो दिखता नहीं, ऐसा नहीं है। hearing aid के जैसे उसके दो पार्ट्स हैं। If you look at this, so एक कंपोनेंट जो है वो सर्जरी करके अंदर लगा दिया जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो जिसको हम प्रोसेसर कहते हैं वो बाहर पहना जाता है। सो क्या होता है कि जो बाहर का प्रोसेसर है वो हेयरिंग एड की जैसी आवाज को इकट्ठा करता है और आवाज को इकट्ठा करके आपके जो कॉइल होता है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आपकी स्किन के थ्रू अंदर के कंपोनेंट में भेजता है आवाज को,
जिससे वो जो सिग्नल है वो कॉक्लिया में जाता है और वहां पे फिर दैट सिग्नल स्टार्ट साउंडिंग लाइक अ साउंड आई वुड से, कि वो आवाज उसको नर्व को स्टिमुलेट करता है और जैसे आवाज होती है ऐसे होता है, ठीक है। सो लाइक हियरिंग एड्स, कॉक्लियर इम्प्लांट ऑल्सो हैव नीड्स, तो क्योंकि प्रोसेसर है इसको भी आवाज को पिक करना है। कभी कभी बहुत सारी सिचुएशन में ऐसे देखा जाता है कि अगर डिस्टेंस पे है या बहुत शोर है तो उस सिचुएशन में भी उन्हें असिस्टेड डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, सेम जैसे कि हियरिंग एड में होता है। आप रिमोट माइक्रोफोन है, टीवी डिवाइसेस है, फोन डिवाइसेस है, ब्लूटूथ कंपेटेबिलिटी है, एप्स है। बट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे इज, पहले क्या होता था कि बैटरीज का बहुत होता था। आज की डेट में चाहे वो हियरिंग एड है, चाहे वो स्मॉल CIC RIC है, या फिर आपकी BT है, या फिर वो इम्प्लांट के प्रोसेसर्स हैं, सब I have started working on the rechargeable batteries, and battery life is beautiful. Some of the hearing aids are today offering something like as much as 40 hours. मतलब एक चार्ज आपने आज चार्ज किया तो 2 दिन चलता है, which is very good for a patient. So कोई भी चाहे वो hearing aid है या कुछ, basic is that early intervention. आपको जैसे लॉस पता लगता है उसको जल्दी से जल्दी हमें डिटेक्ट करना है, चाहे वो बच्चे हो या एडल्ट हो, ताकि जो हियरिंग लॉस का जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके। बच्चों में हम कहते हैं कि जो इंटरवेंशन है 2 साल से पहले, इंटरवेंशन 6 महीने से पहले शुरू हो जानी चाहिए। हियरिंग एड्स कैन बी फिटेड टू एज यंग एज 3 month old चाइल्ड। सो जो उनका इंटरवेंशन है वो बाय 2 years, कॉक्लियर इम्प्लांट का है तो 2 years से पहले अगर इम्प्लांट हो जाए तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम उनकी जो डेवलपमेंट है वो हियरिंग बच्चों के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट हो जाती है। और जैसे जैसे हम डिले करते जाते हैं वैसे वैसे बेनिफिट्स जो है, आउटकम्स है, वो रिड्यूस होते जाते हैं। इसीलिए जल्दी से जल्दी हमें डिटेक्ट करना है और उस पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। सेम थिंग विद एडल्ट्स, द मोर वी डिले, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि लॉस जो है उनका हम हियरिंग लगाते हैं और फिट हो पा रहा है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता, आवाज आती है पर समझ में नहीं आता, क्योंकि ऑडिटरी डेप्रिवेशन हैज सेट इन, ऑडिटरी डेप्रिवेशन हो चुका है। तो जब हम हियरिंग एड लगाते हैं तो कुछ टाइम लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये जानने की जरूरत है कि इम्प्लांट हो या हियरिंग एड्स हो, आपको सिर्फ एक आवाज प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ खरीद लेने से या सर्जरी करा लेने से काफी नहीं है, थेरेपी कराना बहुत जरूरी है। और जब थेरेपी की बात करते हैं तो आप क्या सोचते हो कि सिर्फ थेरेपी जो है वो बच्चों के लिए होती है, which is wrong. There are many adults who benefit greatly with auditory rehabilitation, and if we help them, उनको जो hearing aid का उनके यूसेज है और एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। So it is very important that not only providing the good hearing aid, doing the good fitting is important, even habilitation is the key to the success of hearing well. I would like to just convey that message that early intervention, the right kind of intervention provides the, a good solution, optimum solution that one requires. And I'm sure that if everybody looks into that, and if they reach the right professional, audiologist, they would definitely benefit with the hearing aids and have the satisfaction of using the hearing aids. That is important. वंडरफुल मैम, आपने काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। आई गेस हमारे व्यूअर्स लोग को काफी नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा आज कि हियरिंग लॉस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ना कि बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, इवन जेरियाट्रिक पॉपुलेशन जो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। हियरिंग एड कहीं काम करती है, कहीं आपकी इम्प्लांट्स काम करती है, पर हमें जानना जरूरी है कि राइट पर्सन विल एक्चुअली प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ प्लान एंड राइट काइंड ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन जो हमें आगे चल के हमारी लाइफ को थोड़ी आसान बना देती है। दिस वाज ग्रेट इनसाइट एक्चुअली मैम, काफी सही लगा मुझे सब। हमारे व्यूअर्स की कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप वुड लाइक टू टेक दैट। मिस्टर आमिर है, वो पूछते हैं कि हाउ ऑफन डू यू नीड टू चेक और एडजस्ट माय अदर हियरिंग एड्स? सी हियरिंग एड एडजस्टमेंट इन इनिशियल स्टेजेस, मतलब कि जैसे कि हम शुरू में जब हियरिंग एड लगाया है तो थोड़ा 4 से 5 सिटिंग्स लग सकती है, सबको नहीं लगती है, बट 4 से 5 सिटिंग्स लग सकती हैं टू फाइन ट्यून। ऑफ कोर्स जब एक पेशेंट को हियरिंग एड लगा है
इंस्पाइट अगर हमने रियल ईयर मेजरमेंट्स भी किया है और वेरिफिकेशन भी किया है, उसके बावजूद एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, अडेप्टेशन चाहिए ब्रेन को, बिकॉज ब्रेन ने कभी साउंड सुनी नहीं है, तो अडेप्टेशन पीरियड होता है. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज दैट finer tuning. A patient goes to the environment, they have certain kind of issues, and I forgot to mention, of course, there is today something called data logging in every hearing aid. मतलब कि अगर एक पेशेंट बाहर जा रहा है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हेयरिंग एड उसमें उसको रिकॉर्ड करता रहता है, और जब वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास वापस आता है, व्हेन वी लुक एट दैट एंड व्हेन वी हियर द पर्सन्स कंप्लेन, we can correlate and make adjustment accordingly. So question, according to the question, initially it is required more often. Then what we suggested, every 6 months at least one follow-up is needed, so that if there is any audiologic, अगर उनकी audiometric या thresholds में changes हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम hearing aid को adjust कर सकें, ताकि उनकी information भी adequate रहे, and so that if there are any changes happening at a faster level, then we need to investigate that also. So fast, a regular interval like once in a month in an initial period, and then with a follow-up of 6 months or 1 year. Is required. Okay, such a great tip actually. आपने काफी सही तरीके से बताया कि follow-up is a mandatory aspect actually. हमें करना चाहिए कि मशीन लगा के सिर्फ घर बैठने से प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है. ऐसा भी मैम होता है कि आज के टाइम में तो लोग बाहर नहीं निकल सकते है ना, तो ऐसे टेक्नोलॉजी भी होती होगी जैसे घर जाके हो जाए. Yes. Again, sorry, I forgot to mention before that today, post-COVID, और हमारे पॉपुलेशन कौन सी है सबसे ज्यादा, हमने क्या बोला, जीरेटिक पॉपुलेशन, और वो पॉपुलेशन इज ऑल्सो हाई रिस्क ऑफ कोविड, सो दे डोंट वांट टू कम आउट. तो आज की डेट में मोस्ट ऑफ द हेयरिंग एड्स, इवन बेसिक लेवल हेयरिंग एड्स में रिमोट केयर सिस्टम अवेलेबल है. मतलब कि हम हेयरिंग एड जो है, एक ऑडियोलॉजिस्ट अपनी क्लिनिक पे बैठकर पेशेंट को घर पे जो है ऑनलाइन एडजस्टमेंट्स कर सकता है. इसके दो फायदे, एक ऑफ कोर्स जो पेशेंट का एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे, तो हमें भी पता रहता है. अब क्या होता है कि पेशेंट क्लिनिक पे आया, क्लिनिक का एनवायरनमेंट अलग है, उसके घर का एनवायरनमेंट अलग है, तो जब पेशेंट घर जाता है तो उसको चैलेंजेस आते हैं, देन दे हैव टू कम बैक. बट नाउ because of this remote care, we can, sitting at our clinics, we can provide that facility to a patient sitting at home. The patient doesn't need to come. The follow-up visit की बात थी, अब उसको उतना रेगुलर आने की जरूरत नहीं है पेशेंट को. They take the hearing aid, we set in the remote care facility, and the patient goes back, and then we can adjust the hearing aid as per the need, sitting at home. Perfect. So there is one more question from Mr. Subham Jain. He's asking like, how do I know that I love hearing loss? Like, I have a hearing loss actually. So there are many indicators. सबसे पहले है कि आपसे पहले आपके आसपास के लोगों को मालूम लगने लगता है कि आपको हेयरिंग लॉस है. जैसे कि बेल बज रही है, आपके फोन की रिंग हो रही है, एंड यू आर नॉट पिकिंग, एंड समबडी एल्स इज कमिंग एंड टेलिंग यू कि फोन बज रहा है. दूसरा चीज है, आप टीवी जो है, यू पुट इट एट अ हायर वॉल्यूम, पीपल अराउंड यू कंप्लेन कि आपका टीवी तेज है, या फिर आपके अपनी वॉइस की वॉल्यूम तेज है. दीज आर इंडिकेटर्स. दिस नॉट मीन कि लॉस होगा ही होगा, पर इंडिकेटर्स हैं ये. आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप बार बार उनसे रिपीटिशन मांग रहे हैं, ठीक है, या फिर so these are kind of common indicators. And then of course सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सोशल, आप बाहर लोगों से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको बात नहीं समझ में आ रही है. सो ये सब चीजें जो है ये इंडिकेट करती हैं कि आपको ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाना है, आपको एक हेयरिंग टेस्ट कराना है, ताकि आपको पता लग सके. आजकल ऑनलाइन भी कुछ टूल्स हैं जिससे आप अपनी सेल्फ हेयरिंग चेक कर सकते हैं. दे आर नॉट श्योर, आई विल नॉट से कि वो एक फुल प्रूफ सिस्टम है, बट एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाता है हमें, ताकि अगर हमें वो टेस्ट में अगर हमारा फेल आ रहा है, रेफर आ रहा है, तो हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास इमीडिएटली जाकर चेकअप करा सकते हैं. ऑनलाइन टेस्ट हैं आज की डेट में. Okay, that's a very good piece of information. एक और क्वेश्चन है मैम फ्रॉम मिस आंचल. What causes hearing loss? What causes hearing loss? It's a huge topic in itself. There could be various kind of causes. कंजेनिटल हो सकते हैं, मतलब कि बचपन से ही हेयरिंग लॉस है,
एक बच्चे को पैदा होते ही हेयरिंग लॉस है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस हेरिडिटी, इट कुड बी हेरिडिटी, इट कुड बी एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनी काइंड ऑफ fever or syndromes. So this is what, but today then it could be age related changes which are causing hearing loss. जैसे बाकी चीजें हमारी, बाकी sensations हमारी reduce होती हैं, ऐसी hearing भी reduce होती है. But in older adult cases में it could be ear infections, it could be again any kind of fever, meningitis, ototoxicity जिसको हम कहते हैं दवाइयों से हो सकता है, वायरल फीवर्स हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें ये देखना है कि आज के लिए जो हम इंपॉर्टेंट है इज नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, जो आज, और म्यूजिक इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस, MIHL आजकल हम बोल रहे हैं. मतलब कि आप देख रहे हैं कि आज की जनरेशन सारा टाइम कानों में हेडफोन्स लगा के घूम रही है और वॉल्यूम भी उनका तेज होता है, जिससे धीरे 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 हमारे सेल्स जो है वो उन पे इफेक्ट आता है और हेयरिंग लॉस होता है. जरूरी नहीं कि हेयरिंग लॉस इमीडिएटली होगा. अगर हम कहते हैं कि जनरल पॉपुलेशन हेयरिंग लॉस 50 इयर्स एंड अबव हो रहा है, यू नो, इन जनरेशन का हेयरिंग लॉस जल्दी दिखने लगेगा बिकॉज ऑफ द abuse, noise abuse which is happening, right? So I would only suggest that अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो म्यूजिक सुनिए at the level which is comfortable, like 50% और less volume. आपका म्यूजिक दूसरे को नहीं सुनना चाहिए. दूसरी चीज है कि अगर आपने म्यूजिक लगाया है और आपसे कोई आकर आपको आवाज दे रहा है और आपको आवाज नहीं सुन रही है, तो इसका मतलब आपका म्यूजिक ऊंचा है, उसको रिड्यूस करिए. देन वी नीड ऑल्सो टू सी दैट बीच बीच में आपके ईयर्स को गैप दीजिए. मतलब एट अ स्टेज म्यूजिक नहीं सुनिए, आप गिव अ गैप टू योर ईयर्स, like give them some rest. After rest, of course, you can listen to the music again. So it's not that we are asking you not to listen to the music. We are asking you to give adequate gaps between the listening periods. That was a great information. Ma'am, there's one more question. There's Mr. Ahmed. He's asking, should I use digital or analog hearing aids? Today, analog hearing aids are really not many. I don't think there are many analog hearing aids available. Most of the technology has gone digital. सिर्फ डिजिटल कहने से एनफ नहीं है. अब जैसे मैंने बताया कि डिजिटल में भी अलग अलग फीचर्स हैं, नंबर ऑफ चैनल्स हैं, नॉइज रिडक्शन टेक्नोलॉजी है. तो आप सबसे पहले तो डिजिटल हियरिंग ही एड ही यूज करना चाहिए. दूसरा चीज है, अब आपका एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा टेक्नोलॉजी और कितने फीचर्स रिक्वायर्ड है. सो हियरिंग लॉस ऑफ कोर्स इज वन इंपॉर्टेंट थिंग, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर environment, your lifestyle, how often a person change lifestyle. मतलब कि आप घर पे रहते हैं तो आपका एनवायरमेंट डिफरेंट है, और आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहां दूसरा ही एनवायरमेंट होता है और नॉइज लेवल्स बिल्कुल अलग होते हैं. एंड देन यू गो सी अ मूवी एंड दैट इज अ डिफरेंट थिंग. So there is one solution that we buy hearing aid for each of them, or we buy one good hearing aid which can cater to all these environments and help you. बहुत सारे लोग आते हैं कि उन्होंने 2 हेयरिंग एड लिया, 3 हेयरिंग एड, उनके पास 5 हेयरिंग एड है, लेकिन वो फिर भी डिससेटिस्फाइड है. तो मेरा सजेशन है, एक अच्छा हेयरिंग एड लीजिए, क्योंकि हेयरिंग एड इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर. और आप अगर एक अच्छा हेयरिंग एड यूज कर रहे हैं तो this will help you for coming 5 years or 6 years till your hearing aid lasts. Rather than buying a hearing aid and not using it, buy one hearing aid which would help you, and reduce the side effects of your hearing loss also. So, I think it's a commendable action. I really appreciate, मैम आपने काफी इंफॉर्मेशन कंसाइज टाइम काफी सही से बताया. हो हमारे व्यूअर्स को काफी पता चला कि हियरिंग लॉस को मैनेज के साथ साथ म्यूजिशियंस खासकर आज के टाइम में यंगस्टर म्यूजिक काफी अच्छा पसंद करते हैं. तो आपने काफी सही तरीके से एक ऑप्शन बताया कि म्यूजिक सुन तो सकते हैं, उसके साथ हम अपना कान भी डैमेज नहीं कर सकते. दिस इज स्मॉल पीट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड. एक्चुअली आजकल लोग म्यूजिक सुनते हैं जो हेडफोन लगा के, तो कुछ लोगों का होता है कि नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हम डायरेक्टली म्यूजिक सुने वो अच्छा होगा. तो आपके हिसाब से मैम कौन सा स्ट्रैटेजी ज्यादा हेल्प कर सकता है? नॉइज कैंसिलेशन हेडफोन्स जो हम यूज करते हैं, दैट ओनली कैंसल्स सराउंड साउंड्स.
And rather, if your music is louder in such situation, it can be more damaging. So I would only say that it is that the volume of music which is very important to consider, and then the duration of how long you use that music. मतलब कि आपका वॉल्यूम ऐसा होना चाहिए, जैसे मैंने बताया कि दूसरे को नहीं सुनना चाहिए और दूसरा जो बात कर रहा है वो आपको सुननी चाहिए उस टाइम पे. एंड देन गिव गैप्स, रेस्ट बिटवीन द पीरियड्स. एंड see, what I said is headphones are better than inserts, and that reduces the possibility of any damage to our ear. And of course, best is your surround sounds. But वॉल्यूम इज क्रिटिकल इन ऑल ऑफ दीज, चाहे आप स्पीकर से सुन रहे हैं या हेडफोन से सुन रहे हैं या इंसर्ट से सुन रहे हैं. इंपॉर्टेंट इज द वॉल्यूम, की इज द वॉल्यूम एंड द ड्यूरेशन फॉर हाउ लॉन्ग यू कैन यूज इट. That's again a great piece of information. So We have few questions. There's one more question. This is the last question which we will take for the day. nice. So the question is how to choose a perfect hearing aid in terms of channels, as different companies have their own formula. Yeah, as I said, see, channels only help us to adjust the hearing aid as per the laws. Channel only helps in mimicking our audiogram, frequency requirement of my hearing loss. But of course, it also helps in more number of channel means I can cut my listening needs into smaller segments. And if there's a noise in that segment, and if I reduce that noise, it will not affect my hearing, my understanding of the speech. But channel is not everything. We need to see how effective is that hearing aid in noise. What is the noise cancelling algorithms in that hearing aid? Every company has a different aspects, but most important is noise cancellation, which we need to look at. And then, of course, there are other things like wind noise reduction and other things. But the most important is the comfort of the hearing aid, because every company uses different formulas. They have features, but they uses different formulas, different channels. So just don't go by just channels or don't go by just that mimic. I would only think, I would say go by the requirement. If you are a person who is into say if somebody is actually working in a restaurant where there is sudden sounds happening, then you require more of impulse sound reduction rather than complete sound reduction. So these are things which defines. So answering that is very difficult. I would only say go to an audiologist. They would do your hearing assessment and lifestyle assessment, your listening need assessment. It is not just the hearing assessment that is important, it's the listening need assessment, which tells me what kind of occupation you are in. That will help me decide what kind of hearing aid would be more suitable. And then go for a trial. So once you pick a hearing aid, you can test the hearing aid in different environments. That would help you to decide and make a good decision. Again, काफी सही तरह से आपने hearing aid selection को लेके बात किया है. I think हमारे viewers को again एक अच्छी information मिली है. Thank you. So on behalf of Widex India, I would like to thank you again, ma'am, for Thank you giving very us much. time. And I hope this is useful. And the only thing is that, of course, I wanted, if I had more time, I would have discussed about vestibular vertigo, because that's a full complete topic in itself. The only message I would like to say is, if a person has a hearing loss, and if you have a tinnitus, go to an audiologist, get your vestibular test done. It's a simple test which might help us to even help you in your hearing impairment. thanks again.